Hello students, we are going to study about numbers today. There are various types of number, right? Even numbers, odd number, prime number, then further classes you get rational numbers, irrational numbers, national, international number. This makes you very confused. What are these so many types of numbers? But it is very easy if you understood it properly. Okay, I am trying to teach you. Let's go further. Numbers. There are so many types of numbers named, but we are going to study slowly and steadily one by one. Just remember one thing: numbers are of two types, positive numbers and negative numbers. All positive numbers are called as whole numbers. All positive numbers are called as whole numbers, and negative so called as negative numbers. From that means from 0, 1, 2, 3, 4 to infinity. Infinity means not ending numbers are called as whole number. Positive number, but it's don't include 0, then it is called as natural number. It also is end to infinity, that is it never ends, continuing. all numbers are natural number. यानी हर नंबर होल नंबर होता है और नेचुरल नंबर होता है. सिर्फ अगर 0 आ गया और बोला 0 जब आता है तो हम कहते हैं इट इज़ अ होल नंबर. अगर बाकी कोई भी नंबर लिखा जाए positive number, तो we will tell it is whole number also as well as natural number. अब positive numbers तो ये दो हो गए. अब negative numbers तो माइनस साइन होती है, उसे हम negative numbers कहते हैं. पर दोनों को मिला के negative as well as positive including 0 we call them as integer numbers. Negative numbers are also infinite. 1, 2, 3, 4 also infinite. So all negative numbers as well as positive numbers including 0, that means negative and whole numbers are called as integer numbers. Now let's go. That means if I give you any number 5683, so if people ask you whether it is a whole number, natural number or integer, so what you will answer? It is whole number also, it is natural number also, it is integer also. Okay, are you okay with this? You understood? Let's go further. Now we'll learn about even numbers. Even numbers, what we people teach you, that if any number is divided by 2 and the remainder is 0, then we call it as even number. Till 2 digits number, 3 digits number, it is easy to divide and see immediately whether it is divisible by 2 or not. If it is divisible, then it's even, otherwise it is odd number. But if number is big, there are 5 digits, 6 digit number, then it's very difficult, not difficult, but it takes time to find out whether it is divisible. So there is a other way to find out whether it is even number or not. That is the number which contain digit as 0, 2, 4, 6, 8 in unit place. अगर unit place पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी नंबर है तो हम नंबर देख के ही बता सकते हैं कि वो इवन नंबर है. ओके, वैसे ही अगर नंबर के यूनिट प्लेस में डिजिट जो है वो 1, 3, 5, 7, 9 आता है तो हम उसे कहते हैं ऑड नंबर्स. समझ में आ गया दोनों का फ़र्क? अगर हम इसे कोई नंबर को डिवाइड करेंगे 2 से और रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता है, दैट मीन्स वी कॉल इट एज अ ऑड नंबर. और दूसरा वे क्या है, नंबर देख के ही हमें उसकी यूनिट प्लेस के डिजिट पे ध्यान देना है. कौन सा डिजिट है वो? अगर वो 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो इवन है, और अगर 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो ऑड नंबर है. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. इवन ऑड ये दोनों में तो पूछा ही जाता है सवाल. आगे आता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर. कॉन्जिक्यूटिव तो बहुत इजी है. कंटिन्यूएशन नंबर 1 by 1 से इंक्रीज जब होता है तो हम उसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलते हैं. जैसे अगर आपको बोला जाए कि 5 से लेके 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बताओ, तो हम कौन से बताएंगे? 5, 6, 7, 8. 4 हो गए, 5, 6, 7, 8. सो एक एक नंबर से जब इंक्रीज होता है तो हम उसे बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. क्लियर? नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स.
प्राइम नंबर्स यानी वो नंबर होते हैं जो मल्टीपल किसी के नहीं होते सिवाय उनके खुद के और 1 के। यानी कि जैसे 3 कोई टेबल में भी आता है नहीं, सिर्फ एक ही 3 1 जा 3, यानी कि उसके दो फैक्टर हैं, एक 3 है और एक 1 है। 1 एंड 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 3। वैसे ही 2 ले लो, 1 एंड 2, 2 1 जा 2, अदर्स there is not there in the table। 5 1 are 5, 7 1 are 7, 9, 3 3s are 9, so there are factors। which are the factors of 9? 1 3 9 are the factors of 9, so it is not a prime number। समझ में आया? जिनका कोई फैक्टर नहीं है सिवाय उनके खुद के नंबर और 1 के सिवा, तो वो उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। ओके, प्राइम नंबर्स में इतना याद रखिए कि जो भी प्राइम नंबर्स हैं मोस्टली नहीं, सभी प्राइम नंबर्स ऑड ही हैं। जैसे 23 इट्स अ ऑड नंबर, 23 इज अ प्राइम नंबर, 5 3 सब प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर होंगे वो सब ऑड नंबर्स होंगे। इवन नंबर का सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर एक ऐसा है जो इवन नंबर होते हुए प्राइम नंबर है। बाकी इवन नंबर सब कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, सिर्फ 2 को छोड़ के। आर यू क्लियर? यानी 2 एक इवन नंबर है जो प्राइम नंबर होता है, बाकी इवन नंबर सारे के सारे प्राइम नंबर्स नहीं होते। वैसे ऑड नंबर, अगर आपको कोई बड़ा नंबर दिया गया और पूछा गया है कि यह प्राइम नंबर है कि नहीं, तो पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिए, देखिए कि वो इवन है कि नहीं। यूनिट प्लेस में उसके 0 2 4 6 8 है, अगर हाँ तो वो इवन नंबर है, तो इमीडिएटली यू कैन आंसर इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। लेकिन अगर वहाँ पर ऑड नंबर है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। समझ में आया? तो 2 is only the even number which is prime number, others are all odd numbers, but all odd numbers are not prime number। जैसे मैंने 9 बताया, 9 क्या है? ऑड नंबर है, लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके 3 फैक्टर्स हैं, 1 3 9, 1 9s are 1, 3 3s are 9 and 9 1s are 9। क्लियर? तो इस वैसे ही 21 इज ऑल्सो ऑड नंबर, बट उसके भी फैक्टर्स हैं, एक है 1 3 7 और 21, तो ये भी ऑड नंबर होते हुए प्राइम नंबर नहीं है। तो सब प्राइम नंबर्स ऑड ही होंगे सिर्फ 2 को छोड़ के, लेकिन सारे ऑड नंबर्स प्राइम नंबर हैं क्या? नहीं। ओके, क्लियर? नेक्स्ट आगे चलते हैं, ट्विन नंबर। 2 नंबर्स जिनके बीच में सिर्फ एक ही नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं है, ऑफ कोर्स वो तो कौन सा होगा? इवन नंबर होगा, करेक्ट? तो उसे हम कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। जैसे कि एग्जांपल दिया है मैंने 3 एंड 5। 3 एंड 5 में एक ही 1 4 है जो कि इवन नंबर है, तो वो प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए वो क्या है? ट्विन नंबर्स का सेट है, 3 एंड 5। वैसे ही 5 एंड 7, सेम वे 11 एंड 13, पर प्राइम नंबर 17 और 23 ये ट्विन नंबर्स हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि 17 प्राइम नंबर है, सॉरी हम लोग 19 देते हैं, 19 एंड 23, 19 प्राइम नंबर है, 20 प्राइम नंबर नहीं है, 21 प्राइम नंबर नहीं है, 22 प्राइम नंबर नहीं है, 23, तो इनके बीच में जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा हैं, 1 से ज़्यादा हैं, तो वो ट्विन नंबर्स नहीं है। आर यू क्लियर विद द ट्विन नंबर सेट? ओके, नेक्स्ट गो टू को प्राइम नंबर्स। सबसे पहले याद रखिए, नाम पर मत जाइए। इसमें प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्राइम नंबर से रिलेटेड है, ये इसका प्राइम नंबर से कोई भी लेना देना नहीं है। ये 2 ग्रुप नंबर्स के दिए हैं, अगर उनमें कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है 1 को छोड़ के, 1 तो सब में आएगा ही, अगर कोई भी कॉमन फैक्टर डिवाइजर नहीं है तो हम उसे कहते हैं को प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल दिया है 25 एंड 28। 25 आता है 5 5s are 25, 7 4s are 28। 25 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1 5 25, और 28 के फैक्टर्स क्या हैं? 28 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 3
सॉरी 174 करेक्ट। तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, उसमें सिर्फ 1 5 है और इसमें 3 7 एंड 4 है, सो इट इज कॉल्ड एज को प्राइम नंबर। वैसे ही नेक्स्ट ग्रुप दिया है 12 एंड 35, 3 4 are 12, 6 2 are 12, 35 का क्या आता है 5 7 are 35। इसके सिर्फ फैक्टर्स कौन से हैं 5 एंड 7, और 12 के क्या हैं 3 4, यहाँ 6 2 ले लो, कोई भी लो उनमें, और 35 के फैक्टर्स में कोई सिमिलैरिटीज नहीं है, तो उसे हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। फिर बता रही हूँ नाम पे मत जाना, इसका प्राइम नंबर से कोई लेना देना नहीं है, ओके। चलो आगे जाते हैं। जो भी नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो सब नंबर्स क्या हैं कंपोजिट, सिर्फ 1 को छोड़ के, सिर्फ 1 को छोड़ के बाकी सब नंबर्स जो प्राइम नंबर्स नहीं होते यानी कि उनका दूसरे मल्टीपल होते हैं उसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। पर इसमें भी एक बात याद रखना कि 1 नंबर जो एक है सिर्फ 1 जो नेचुरल नंबर या होल नंबर 1 जो है इट इज़ नाइदर अ प्राइम नंबर नाइदर अ कंपोजिट नंबर, मतलब ना ही वो प्राइम नंबर है ना ही वो कंपोजिट नंबर है। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। ये तो थे हमारे सिंपल नंबर्स के बारे में एक शॉर्ट समरी बताई गई। आगे आते हैं रैशनल नंबर्स। जहाँ तक हमने अभी किया था सब सिंपल नंबर्स थे, अब हम आते हैं फ्रैक्शन की तरफ। फ्रैक्शन बोलो या रेशियो बोलो, इट इज़ वन इज द सेम। रेशियो क्या होता है, अगर मैं आपको बोलती हूँ 3 कटोरी चावल लो और 1 कटोरी चावल लो और उसमें 3 कटोरी पानी डाल दो, तो मैं इसे रेशियो कैसे बताती हूँ 1:3, करेक्ट। इसे कहते हैं रेशियो। और अगर इसे मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगी 1/3। इसको ही रैशनल नंबर कहते हैं। फिर जो ऊपर लिखा जाता है फ्रैक्शन में उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे लिखा जाता है उसे कहते हैं डिनोमिनेटर। यहाँ पर मैंने P/Q लिया है, दिस इज द वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द फ्रैक्शन। P/Q, P इज कॉल्ड एज न्यूमरेटर एंड Q इज कॉल्ड एज डिनोमिनेटर। इसमें याद रखना कि Q यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, अगर वो 0 है तो वो रैशनल नंबर नहीं है, ओके। रैशनल नंबर के आगे 2 टाइप्स आते हैं, एक आता है टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ डिवीजन करके दिखाया है, समझ में आ जाएगा। एक नंबर यहाँ पर मैंने 127 को 16 से डिवाइड किया है। इसमें जो क्वोशंट है वो आ रहा है 7.93। अब मैं ये करके तो दिखाऊँ, 16 7 = 112, इसमें नीचे 15 बचा है, 0 लिया, इससे डेसिमल 9। याद रखिए ये जो इनके फ्रैक्शंस के जो डिवीजन के आंसर्स आते हैं वो हमेशा डेसिमल फॉर्म में आते हैं। 2 रैशनल नंबर्स कैन हैव डिफरेंट डेसिमल फॉर्म्स, डेसिमल फॉर्म्स में आते हैं। उसके 2 तरीके हैं, एक है टर्मिनेटिंग और एक है नॉन टर्मिनेटिंग। ये जो 150 माइनस ये 144 किया है 60 आया है, फिर 3 48, 16 7 = 112, लास्ट में बचा है 8 80 हो गया, 5 ये यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया है। रिमाइंडर 0 आ गया मतलब ये टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट का मतलब होता है एंड होना, ख़त्म होना, यानी यहाँ पर डिवीजन ख़त्म हो जाता है। इसके आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि रिमाइंडर 0 आ चुका है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे अगर मैंने 43 को 12 से डिवाइड किया, वहाँ देखेंगे तो 12 3 = 36, 7 डेसिमल फॉर्म, 0 लिया है 60, 12 8 = 96, 12 3 = 36, 12 3 = 36, फिर यहाँ 4 ही आया। इसका मतलब ये रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। यहाँ हर बार जितनी बार भी आप करोगे 4 4 4 4 4 आएगा। हम इसे 40 करेंगे और 36 12 3 = 36 से कट करेंगे, यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं 4 आ रहा है। ये कंटिन्यूएशन में रहेगा और यहाँ आंसर 3 3 3 रिपीट होगा। इसको बोलते हैं रिकरिंग। 3 जो है वो रिकर हो रहा है। कई बार एक नंबर रिकवर होता है, कई बार 2 लास्ट 2 नंबर्स होते हैं, कई बार 3 हो सकता है, उसे वैसे एक्सप्लेन करते हैं। पर आपको यहाँ पर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग समझा, जहाँ इसका एंड नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं है, हम उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। When quotient is in decimal form and the remainder is 0, we called it as a terminating numbers.
नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को रिकरिंग नंबर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें लास्ट नंबर जो है वो लास्ट नंबर या लास्ट के कई डिजिट्स जो हैं वो रिकरिंग हो रहे हैं. When quotient is in decimal form but non-terminating, that is the remainder is never arrives as zero, we call it as a non-terminating number और recurring numbers. इसमें तीसरा अभी आ रहा है irrational numbers. इरेशनल नंबर्स यानी अगर आप इसे डिवाइड करोगे ना ही उसका आंसर रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, यानी कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, और उनका क्वोशंट जो है वो कंटिन्यू रहेगा, उसे उसका भी कहीं पर एंड नहीं होगा ना, मतलब कोई नंबर भी रिकरिंग नहीं हो रहा है. जैसे रूट टू का आंसर देखिए क्या आता है 1.414213 यहाँ पर देखो लास्ट में 309, और अगर मैं इसे कंटिन्यू करूँ तो नंबर्स आते ही जाएंगे, कहीं पर टर्मिनेट ना ही नीचे ज़ीरो आ रहा है रिमाइंडर और ना ही क्वोशंट जो है उसका भी एंड हो रहा है, ना ही रिमाइंडर ज़ीरो ना ही क्वोशंट का रिकरिंग भी नहीं आ रहा है. करेक्ट. ऐसे को हम कहते हैं इरेशनल. जैसे √2, √3, √5, √10 ये जो नंबर्स हैं सब इन्हें हम कहते हैं इरेशनल numbers. Square root of numbers are that are not perfect square are all irrational numbers. Okay, clear? अब ये जो सब है रैशनल नंबर्स हमने पढ़े, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, इरेशनल नंबर्स जो रिकर नहीं कर रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, उसे इरेशनल नंबर कहते हैं. ये जो सब नंबर्स हैं इन सब को बोलते हैं रियल नंबर्स. दिस कम अंडर रियल नंबर, यानी हर रैशनल नंबर रियल है, हर टर्मिनेटिंग नंबर रियल है, हर नॉन टर्मिनेटिंग रियल है, रिकरिंग भी रियल है, इरेशनल नंबर भी रियल है. पर हर रियल नंबर रिकरिंग नहीं हो सकता, हर रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता, क्योंकि हमने उनके सब types पढ़े. Are you clear with that? Real numbers are those numbers which are able to measure the numbers. For measuring we use these numbers. Okay? यहाँ पर एक टेबल दिया है शॉर्ट में जिसका आंसर आपको ढूंढना है. बुक पेन लेके आप आंसर बुक कर लीजिए, 2-3 मिनट बुक कर इसका फटाफट आंसर लिख दीजिए कि इसमें रैशनल कौन सा है, इरेशनल कौन सा है और रियल कौन सा है. जैसे कि पहला हमने किया है -14 डिवाइड बाय 5 यानी 14/5. ये रैशनल है एज इट इज़ फ्रैक्शन, नेगेटिव है पर फ्रैक्शन है, नेगेटिव और फ्रैक्शन है, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है. और अगर 14 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 2 ज़ा 10, 40, 5 8 ज़ा 40, यानी कितना आंसर आएगा ऊपर 2.8. राइट. तो ये क्या हो गया, एंड हो गया, रिमाइंडर ज़ीरो आ गया. दैट मीन्स ये रैशनल है, इरेशनल नहीं. और ये रैशनल है तो ऑटोमेटिकली वो रियल है. √6 का भी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. राइट. तो इसीलिए वो रैशनल नहीं है. क्या है, √6. हमने अभी लास्ट इसमें पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जिनकी भी स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स दैट आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं तो वो सब क्या हैं, इरेशनल नंबर्स हैं. इसलिए √6 क्या है, इरेशनल नंबर. और वो इरेशनल नंबर है तो ऑफ कोर्स रियल नंबर है ही. समझ गए. आगे आता है 1.316. 1.316 यानी ये एंड हो रहा है. राइट. डेसिमल फॉर्म में पर एंड हो गया है, तो ये रैशनल है और रियल है. यह कंटिन्यूटी में है, इसमें एंड नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर, ऑफ कोर्स रियल होगा ही. 10.425 ये एंड हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर रियल रैशनल है और रियल नंबर है. ओके. ये थे फ्रैक्शन के बारे में, रैशनल, इरेशनल और रियल के बारे में हमने पढ़ा. यहाँ तक सिंपल नंबर्स जो हम लोग फ्रैक्शन के बिना कर सकते हैं उनके भी बारे में स्टडी कर लिया, कितने टाइप्स के हैं. रैशनल और फ्रैक्शंस के बारे में भी पढ़ लिया, कौन से रैशनल होते हैं, रैशनल, और ये सब रियल होते हैं, वो सब पढ़ा. अब आगे चलते हैं नेशनल नंबर और इंटरनेशनल. नेशनल नंबर और इंटरनेशनल नंबर्स
यानी कि नेशनल नंबर, यानी हम उसे अपनी कंट्री में, इंडिया में उसे कैसे रीड आउट करते हैं, कैसे बोलते हैं, और इंटरनेशनल में थोड़ा फ़र्क है। जो फ़र्क है, लेट्स सी। हम, आपको ये तो सबको आता ही है कि स्टार्टिंग में जो होता है उसे यूनिट कहते हैं। जो फर्स्ट डिजिट आता है आपके राइट हैंड से, उसे हम कहते हैं यूनिट। टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, करेक्ट। यानी कि पहले 3 के बाद हम कॉमा डालते हैं, उसे पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियड। पहले 3 डिजिट्स के बाद हम कॉमा डालते हैं और फिर 2 डिजिट्स के बाद उसे पीरियड डाल के अलग किया जाता है। और इसे रीड करते वक्त हम लोग टेंस के यूनिट और टेंस के जैसा पढ़ते हैं। यूनिट टेंस 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और ऐसे ही आगे चलता है। तो हम ये नंबर को कैसे पढ़ेंगे? 45 करोड़ 67 लाख 89,321। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल नंबर में सेम नंबर को पढ़ें तो फ़र्क है। इनमें सबसे बड़ा फ़र्क है कि यहाँ पर सेपरेट 3 डिजिट में हर जगह होता है। और वो कैसे? यूनिट, उनके कैसे प्लेसमेंट है? यूनिट 10, 100, 10,000, 10,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ओके, हम इसे कैसे पढ़ते हैं? 456 मिलियन 789,321 आया? क्लियर हुआ? ये इस तरह रीड किया जाता है। यानी यहाँ पर सेपरेशन 3 डिजिट के बाद ही हर जगह देते हैं, और हमारे यहाँ स्टार्टिंग में 3 है, फिर 2 पीरियड्स, 2 के बाद पीरियड से सेपरेट किया जाता है। हमारे यहाँ लाख आता है, यहाँ इंटरनेशनल में लाख नहीं आता, वो लोग सीधा मिलियन से स्टार्ट होते हैं, मिलियन आता है। और मिलियन के हमारे यहाँ लाख के बाद करोड़, मिलियन, 10 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन आगे। और वैसे ही उन लोगों में इंटरनेशनल लेवल में मिलियंस, मिलियन के बाद आता है बिलियंस, मतलब बिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन, फिर वही ट्रिलियन के लिए 10 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, फिर क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन। इस तरह नंबर्स में कंटिन्यूएशन होता है। ठीक है, ये आ गया समझ में। अब हम लास्ट जाते हैं रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स क्या होते हैं? हम हिंदू अरेबिक लैंग्वेज में नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 4, और ये रोमन वे में इसे साइन दिए गए हैं अलग। जैसे 1 को आई शेप की जैसा दिया है, 5 को V दिया है, 10 को X दिया है, ऐसे अलग अलग साइन दिए गए हैं। कोई भी साइन 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता। जैसे कि 1 सिंगल आई, 2 डबल आई, 3 ट्रिपल आई। अब आई और नहीं आएगा। 3 से ज़्यादा 4 के लिए 4 आई नहीं लिख सकते। हम उसे कैसे लिखते हैं? आई और 5 का साइन है V, तो आई V, यानी कि 5 - 1 4 और 5, फिर 5 + 1 के लिए 6। इस तरह हम लोग नंबर्स, रोमन नंबर लिखते हैं। 10 के लिए फिर देखिए कैसे लिखा है, 1 - 10 दैट इज 9। ओके, आगे आता है, इस तरह नंबर्स कंटिन्यूएशन में रहते हैं। और आगे 50, 100, मैं अभी सब रोमन नंबर्स तो नहीं बता रही हूँ, पर इसलिए शॉर्ट में थोड़े बता दिए हैं। 50 को हम L कहते हैं, 100 को C, 500 को D, 1000 को M। यानी 50 जब लिखना है तो हम L लिखेंगे, 55 लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी? L और V, 5, 55। 100 के लिए C, अगर मुझे 99 लिखना है तो मैं क्या करूँगी? 100 C लिखूंगी, -1, 1 C। ओके, 500 के लिए D, 1000 के लिए M। अब मुझे कहा, मैंने यहाँ MD लिखा है 1500, कैसे? 1000 के लिए M, 500 का D, यानी 1500। 1900 के लिए कैसे लिखोगे? 1 के लिए 1000 के लिए M, D for 500, यानी हो गया ये 1500। और पर हमें तो 1900 चाहिए, तो 1900 के लिए 4 कैसे लिखेंगे हम लोग? 400 के 900 के लिए 400 का मैं कैसे लिखेंगे? D - 100, तो आ जाएगा 1900। ऐसे लिखते हैं। और 2000 के लिए 2M। ओके, 1000 1000 2000,
आर यू क्लियर विद दैट? ये थे रोमन नंबर्स। यहाँ हमने वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर सीखा है। मेरे हिसाब से आज आप क्लियर हो गए होंगे। आपका ये जो डाउट था कि नंबर्स और उसके डाउट्स कितने क्वेश्चंस थे, ये सब फिनिश हो गए हैं। ओके, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।